Hello friends, today we will see some basic facts about deadlock. In the last lecture we have already seen that for deadlock occurrence there are four necessary conditions for deadlock occurs. Basic facts are: if the graph contains no cycle, there is no deadlock. In last lecture we have seen the resource allocation graph. So this is the diagram. So in resource allocation graph, if there is no cycle, then we can say there is no deadlock. If graph contains a cycle, if only one instance per resource type, then deadlock will occur. If graph contains a cycle, if only one instance per resource type, then deadlock will not occur. If several instances per resource type, possibility of deadlock. अगर आपके ग्राफ में साइकिल ऑकर होता है या साइकिल होता है तो दो केसेस होते हैं. इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स अगर हम देते हैं तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए एक रिसोर्स अवेलेबल होगा. लेकिन अगर आपके पास सेवरल इंस्टेंसेस है पर रिसोर्स टाइप, देन हर रिसोर्स के लिए सेवरल इंस्टेंसेस अगर है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है डेडलॉक की. सो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स. So here we can see that P1 is allocated to R1 and R1 is allocated to P2. So here one cycle is completed here in in the first diagram. In the second diagram, P1 is allocated to R1, R2 is given to P1. R1 has two instances which are given to P2 and P3, and P3 is demanding to R2, P3 is demanding to R2, and R2 is allocated to P4. So there are some methods for handling the deadlocks. Ensure that the system will never enter in the deadlock state. Okay, to handle the deadlock, first of all, operating system has to ensure that deadlock will never enter into the or your process should never enter into deadlock state. Allow the system to enter a deadlock state, detect it and then recover. So this is the second criteria, that अगर deadlock आता ही है, so allow it to come and detect it and then recover it. So that is deadlock recovery. Ignore the problem and pretend that deadlocks never occur in the system, used by most operating systems including Linux or Unix. Now the second method is that ignore the problem of deadlock and pretend that deadlock never occur. Deadlock occur होता भी है तो CPU ऐसे कुछ प्रोसेसिंग होता है CPU के अंदर कि डेडलॉक ऑकर हुआ है ये समझ में नहीं आता है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी. To ensure that deadlocks never occur, the system can use either a deadlock prevention or deadlock avoidance algorithm. Okay, there are two methods to handle the deadlock. That is, either you can prevent from deadlock or we can avoid the deadlock. So deadlock prevention. To prevent the deadlock, these four conditions that are necessary, four conditions are there. So mutual exclusion not required for shareable resources must be held for non-shareable resources. Not required for shareable resources, but it must hold for non-shareable resources. Mutual condition must hold for non-shareable resources. Hold and wait. We have already seen what is hold and wait condition. Hold and wait condition. To ensure that hold and wait condition never occur in the system, we must guarantee that whenever a process requests resources, it does not hold any other resources. अगर मुझे डेडलॉक को प्रिवेंट करना है तो इसका मतलब होल्ड एंड वेट कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए. सो सब कब ये फॉल्स होगी, तो उसके लिए हम एक गारंटी हम प्रोसेस को चाहिए कि अगर एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट की है तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो जो प्रोसेस है वो किसी दूसरे प्रोसेस को ये जो प्रोसेस है जिसके पास एक दूसरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. सो होल्ड एंड वेट कंडीशन वहाँ पे फॉल्स होनी चाहिए. There are two protocols for this. First is require process to request and to be allocated to all its resources before it begins execution. तो अगर ये होल्ड एंड वेट कंडीशन मुझे फॉल्स करनी है तो वहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे. पहला प्रोटोकॉल है कि इट रिक्वायर्स
process to request and be allocated all its resource before it begins execution. यानी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही जिसको जो रिक्वेस्ट ये रिसोर्सेज लगने वाले हैं उसे वो सब दे दो. प्रोसेस को अगर 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे 2 रिसोर्सेज चाहिए और वो जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो प्रोसेस को पहले ही दिए जाएंगे सो दैट डेडलॉक कैन नॉट बी ऑकर. So this is the first protocol. Second protocol, allow process to request resources only when the process has none. Second जो criteria है that is process can request only the resource process can request the resource only when it doesn't have any resource at that time. Okay, process can request the resource only when that process does not have any one resource with it. So that is the second protocol. Both of these protocols have two main disadvantages. First, resource utilization may be low since resources may be allocated but unused for long period. जो पहला क्राइटेरिया है कि पहले जो रिसोर्स डिमांड कर रहा है वो रिसोर्स को पहले ही दे दो, उसमें डिसएडवांटेज क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होगा. इसका मतलब अगर मुझे 4 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, 4 रिसोर्सेज है और चौथे नंबर का जो रिसोर्स है वो मुझे 5 मिनट के बाद लगने वाला है, तो ये 5 मिनट के लिए वो रिसोर्स क्या होगा, ऑक्यूपाई होगा. और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स वेरी फास्टली, तो ये 5 मिनट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है. तो 5 मिनट तक वो जो रिसोर्सेस है वो प्रोसेस का क्या करेगी, एक्वायर करके रखेगी. लेकिन इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगी. तो फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है उसमें ये डिसएडवांटेज है कि जो रिसोर्स है उसकी ज़रूरत अगर बाद में है तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा. Second is more starvation is possible. A process needs several popular resources may have to wait indefinitely because at least one of the resources that it needs is always allocated to some other. स्टारवेशन का मतलब क्या है कि सेकंड जो क्राइटेरिया है तो उसमें स्टारवेशन का प्रॉब्लम आएगा. इसका मतलब क्या है कि एक पॉपुलर रिसोर्स है, पॉपुलर रिसोर्स फॉर एग्जांपल हमारे पास मेमोरी है. मेमोरी इज़ वेरी पॉपुलर रिसोर्स, हर चीज़ के लिए हमें मेमोरी लगती है. तो अगर उसकी ज़रूरत बहुत बार लगती है हमें, तो क्या होगा कि एक प्रोसेस ने अगर वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर चुका है तो दूसरी प्रोसेस उसको एक्वायर नहीं कर सकती है जब तक वो उसको फ्री नहीं करता है. तो सेकंड जो प्रोटोकॉल है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि इट नीड्स हैव एक वन पर्टिकुलर प्रोसेस जो रहेगी उसको बहुत टाइम के लिए या इंडेफिनाइट टाइम के लिए हमेशा वेटिंग स्टेज में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ डिमांडिंग द रिसोर्स विच इज़ वेरी पॉपुलर लाइक मेमोरी. तो वो प्रोसेस को मेमोरी ऑक्यूपाई होगी ही नहीं अगर हमने सेकंड प्रोटोकॉल को यूज़ किया है तो. सो दैट इज़ द सेकंड प्रॉब्लम. नो प्रीम्पशन, हमने होल्ड एंड वेट देखा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखा है. नाउ नो प्रीम्पशन. टू एंश्योर दैट दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड वी कैन यूज़ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल. If a process that is holding some resources requests another resource that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held are released. ओके, अगर कुछ प्रोसेस है जिसके पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेस है और फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो अगर जो रिसोर्सेस को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर करंटली अवेलेबल नहीं है या करंटली एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस का काम क्या रहेगा कि उसके पास जो रिसोर्सेस है उसको हम क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे. ओके, अगर प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल है और दूसरे रिसोर्सेज की वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो रिसोर्सेस है वो अगर इमीडिएटली उसको एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस का खुद का काम है कि मेरे पास या वो प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेस होंगे उसको पहले रिलीज़ करें. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस किसी दूसरे प्रोसेस के लिए ज़रूरत होंगी और दूसरे प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेस है वो मुझे ज़रूरत होंगी. तो मेरा काम ये है कि अगर मुझे रिसोर्सेस तुरंत नहीं मिल रहे हैं तो मेरे पास जो रिसोर्सेस है उसको मैं रिलीज़ करूँगी. रिलीज़ द रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज़ वेटिंग. जो भी रिसोर्स हम रिलीज़ करेंगे उसको हम एक रिसोर्स लिस्ट में डालेंगे एंड फॉर विच द प्रोसेस इज़ वेटिंग. Process will be started only when it can regain its old resource as well as the new ones it is requesting.
प्रोसेस फिर से रिस्टार्ट होगी जब उसको उसके खुद के रिसोर्सेज मिल जाएंगे और उस खुद के रिसोर्सेज के साथ एक नए रिसोर्सेज उसको मिल जाएंगे। यानी पहले मैंने क्या किया कि मुझे अगर रिसोर्सेज की ज़रूरत है और अगर मुझे वो नहीं मिल रहे हैं तो मैंने क्या किया है, मेरे पास के जो रिसोर्सेज है उसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुई। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मेरे जो रिसोर्सेज मैंने रिलीज़ किए थे वो मुझे वापस मिल गए और जो मैंने रिक्वेस्ट किए थे वो भी मिल गए। और जब ऐसी कंडीशन आती है तब प्रोसेस फिर से रिस्टार्ट होना स्टार्ट करती है। एंड लास्ट कंडीशन इज सर्कुलर वेट फॉर डेडलॉक। To ensure that this condition never hold is to impose a total ordering of the resource type. To illustrate, we'll assume that, for example, we have number of resources R is R1, R2 up to Rm. These are the resources. We assign each resource type a unique integer number, which allows us to compare two resources and to determine whether one precedes another. हर रिसोर्स का हम एक इंटीजर नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रिसोर्सेस हैं यहाँ पे, टेप ड्राइवर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर, और हर रिसोर्स को मैंने एक नंबर दिया है 1, 5 and 12. As per above, to prevent deadlock, each process requests resource in an increasing order of enumeration. ओके इसका मतलब जब प्रोसेस जब डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो ये जो सर्कुलर वेट है उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं 1, 5, 12, तो कौन से सीक्वेंस से रिसोर्सेज जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। इसका मतलब पहले फर्स्ट नंबर की रिक्वेस्ट जाएगी, यानी फर्स्ट रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल टेप ड्राइव एलोकेट होगा, उसके बाद डिस्क ड्राइव एलोकेट होगा एंड लास्टली प्रिंटर एलोकेट होगा। सो 1, 5, 12 ये सीक्वेंस दिया जाएगा या नंबर दिया जाएगा, और वो जो नंबर है वो इस तरीके से देने हैं कि जो नंबर से, जैसे प्रिंटर का काम सबसे बाद में अगर रहता है तो उसको 12 नंबर देंगे। इसका मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में वो रिसोर्स एलोकेट होने वाला है। सो दैट इज़ सर्कुलर वेट। That is, a process can initially request resource type Ri. After that, the process can request type resource Rj if and only if the Rj is greater than f of Ri. वही इसका मतलब है कि अगर प्रोसेस ने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबर के रिसोर्स को अगर रिक्वेस्ट की है तो वो देखेगा कि Rj इज़ ग्रेटर दैन f of Ri और नॉट। ओके सॉरी, that is, the process can initially request the resource of type Ri. After that, the process can request the resource Rj if and only if f of Rj is greater than f of Ri. यानी इसका मतलब ये है कि 5 नंबर के रिसोर्स को तभी एलोकेट किया जाएगा जब आपके पास फर्स्ट नंबर का रिसोर्स है। ओके जब आपके पास फर्स्ट नंबर का रिसोर्स है तो ही आपके पास 5 नंबर का रिसोर्स जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 5 नंबर का प्रोसेस है और आप 1 नंबर के प्रोसेस को 5 नंबर का रिसोर्स है और अगर आप 1 नंबर के रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो एलोकेट नहीं होगा। मीन्स दैट द प्रोसेस दैट वांट टू यूज़ प्रिंटर एंड टेप ड्राइव एट द सेम टाइम मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट द टेप ड्राइव एंड देन रिक्वेस्ट द प्रिंटर। यानी अगर एक प्रोसेस है जिसको टेप ड्राइव और प्रिंटर लग रहे हैं तो ऑब्वियसली टेप ड्राइव के लिए नंबर 1 है दिया हुआ है और प्रिंटर के लिए 12 नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब पहले कौन सा रिसोर्स एलोकेट होगा, टेप ड्राइव एलोकेट होगा क्योंकि उसका नंबर 1 है, और दूसरे बार प्रिंटर एलोकेट होगा क्योंकि उसका नंबर 12 है। सो इन दिस वे सर्कुलर वेट कैन बी हैंडल। मीन्स वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स Rj इट हैज़ रिलीज द रिसोर्स Ri फर्स्ट। यानी अगर मुझे प्रिंटर को यूज़ करना है तो मैं किसे रिलीज़ करूँगी, पहले टेप ड्राइव को रिलीज़ करना पड़ेगा या तो डिस्क ड्राइव को रिलीज़ करना पड़ेगा। 1 और 5 को रिलीज़ करने के बाद ही मैं 12 को यूज़ कर सकती हूँ। दैट इज़ सर्कुलर वेट। सो दिस इज़ द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ और बेसिक फैक्ट्स ऑफ डेडलॉक्स एंड डेडलॉक प्रिवेंशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।